सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेड पाथ विद पीयूष। और आज हम शुरू करने वाले हैं फॉरेंसिक मेडिसिन, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे टॉक्सिकोलॉजी के साथ। और टॉक्सिकोलॉजी में द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक इज कोरोसिव पॉइजंस। इसका दिस इज पार्ट वन, जिसमें वी आर गोइंग टू कवर द मेजर थ्री एसिड्स दैट वी स्टडी इन कोरोसिव पॉइजंस, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू. So the first is the definition and classification of corrosive poison. A corrosive poison is a substance which fixes, destroys, and erodes the surface with which it comes in contact. Normal definition, you have to just mug it up. It will fix upon a substance, surface, destroy it, and erode the surface with which it comes in contact. How they act? They act by extracting water from the tissues. Okay, that will ultimately cause coagulation of cellular proteins, and they will convert hemoglobin into hematin. They will cause degradation of hemoglobin. So that is how they act. They fix, destroy, and erode the surface with which they come in contact. They can be divided into acids and alkalis. In this, we are going to study the major acids. Okay, the first one is sulfuric acid. It is also known as the oil of vitriol. Okay, so remember, this can be an MCQ question. It is also known as oil of vitriol. It is heavy, colorless, odorless, oily, and has a burning taste. Most of the acids that we study are colorless and they are odorless. They have fuming sensation and burning taste. Okay, locally all of them have corrosive action. Okay, the fatal dose and fatal period is different for each of them, so remember that. And it's very easy to remember the fatal dose. I'll do the trick here only. Remember H2SO4, HNO3, and HCl in order, then 5 to 10, then 10 to 15, and then 15 to 20. Okay, so this is the fatal dose for each of them. So here you can see fatal dose is 5 to 10 ml for sulfuric acid, and the fatal period is 12 to 24 hours. Okay, so remember this. Next we come to what are the signs and symptoms that will be caused by this poisoning. So there will be pain in throat. Obviously there is local action, and there will be pain in epigastrium. There will be dysphagia. There will be problem in swallowing, problem in respiration, and problem in speaking. Dysphagia, dyspnea, and dysphonia. 3 Ds, and they are common in all of them. This part is common in all of the poisonings. This I am highlighting, which is common in all of the poisonings: pain in throat, epigastrium with dysphagia, dyspnea, and dysphonia, and strongly acidic vomitus. So this is very important. You have to write it in all of the poisonings. All of the acidic poisonings. The differentiating feature that comes now is the chalky white and brittle teeth. Okay, this is like a characteristic feature that you need to remember for sulfuric acid, that it causes chalky white and brittle teeth. Okay, there is presence of tenesmus and abdominal stiffness. This also is present in most of the poisonings. There is erosion of skin and mucous membranes of mouth and tongue. Okay, and perforation of stomach. This is another differentiating feature that we will see, that there is high perforation of stomach in case of H2SO4. Okay, very high, but it is less common in case of HNO3 and HCl. Okay, so remember this. Next we come to what is the cause of death in H2SO4 poisoning. It can be shock, it can be perforation of stomach, it can be peritonitis, it can be laryngeal spasm, or due to esophageal stricture. Here esophageal stricture is a differentiating point. It's most probably seen in H2SO4 poisoning, while shock, perforation of stomach, peritonitis, laryngeal spasm are kind of common. Okay, next we come to what are the post-mortem findings. These are important. Findings, you will find the erosion of skin along the angles of mouth and lips. Erosion of skin at the angles of mouth and lips, you'll find the skin is eroded. Then there will be corrosion of trachea and larynx. There will be blackish charring of the stomach. This is important. Blackish charring of stomach, perforation of stomach, and toxic swelling of liver and kidneys. You need to remember all these points. This is a very important question giving the post-mortem findings of any poisoning. Okay, I'll repeat them once again. There will be erosion of skin at the angles of mouth and lips. There will be corrosion of trachea and larynx. There will be blackish charring of stomach, perforation of stomach, and toxic swelling of liver and kidneys.
Next we come to what are the medico-legal aspects. Firstly, it can be accidentally ingested mistaking it for glycerin. So remember, glycerin can be mistaken for glycerin. It can be suicidal. Homicidal is rare. Okay, homicidal is rare in all of these poisonings. Okay, they're not generally used as a homicidal agent. It can also be used as abortifacient and for vitriolage. Okay, now coming to what is vitriolage. Vitriolage by definition, it's firstly you need to know it's a very important topic. Now vitriolage is throwing of any corrosive, not necessarily sulfuric acid, on a person with malicious intent. मतलब क्या हुआ, अनुवाद किया जाए तो कोई भी कोरोसिव सब्सटेंस जो कि किसी इंसान पर फेंका जाए, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सल्फ्यूरिक एसिड ही हो, और इंटेंशन ऐसी हो कि पर्सन को हर्ट किया जाए, तो दैट इज विट्रोलेज. मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है. ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या होंगे, अब जब आपने विट्रोलेज किया तो आपको क्या करेक्टरिस्टिक दिखेंगे बर्न्स के. डिस्कलरेशन हो जाएगी, स्टेनिंग ऑफ स्किन एंड क्लोथ्स होगी, देयर विल ट्रिकल मार्क्स. ट्रिकल मार्क्स मीन्स जब सल्फ्यूरिक एसिड ट्रिकल करेगा डाउन द फ्रॉम द माउथ टू द नेक, सो ट्रिकल मार्क्स आएंगे. पेनलेस बर्न्स होगी विद एब्सेंस ऑफ वेसिकेशन एंड रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन, and there will be presence of chemical substance in stains and repair is slow. तो important point is presence of chemical substance in stains, जो कि obvious सी बात है. discoloration होगी, ठीक है, trickle marks होंगे and painless burns. ओके, नाउ इसका ट्रीटमेंट क्या है. नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ H2SO4 पॉइजनिंग, इट्स द ट्रीटमेंट ऑफ विट्रोलेज. ठीक है, अगर विट्रोलेज हो तो क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी पार्ट्स हैं उनको हम प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सोप से वॉश करेंगे. एक थिक पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड या कार्बोनेट लगाएंगे जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे. जो रॉ सर्फेसेस है उसको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट से कवर करेंगे. अगर आई बर्न्स हुए हैं तो उनको एनेस्थेटाइज करो विद टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रॉप्स और इरिगेट करते हैं विद वाटर फॉर 15 मिनट्स होल्डिंग द आईलिड्स ओपन. इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है कि ग्रीवियस हर्ट हो सकती है अगर फेस वगैरह पे फेंका जाए तो. ठीक है, तो अगर आपने ग्रीवियस हर्ट पढ़ा हो तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रीवियस हर्ट. ठीक है, इसके पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम जनरल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे फॉर ऑल ऑफ द एसिड पॉइजनिंग्स तो उसमें भी इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट एसिड, दैट इज नाइट्रिक एसिड. दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्वा फोर्टिस. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन. ठीक है, ये भी कलरलेस है. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये पंजेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, बर्निंग टेस्ट इसमें भी है, ये भी फ्यूमिंग है, बट पंजेंट टेस्ट है नाइट्रिक एसिड का, ये आपको याद रखना है. तो आई हाईलाइट दिस विद अ डिफरेंट कलर. ठीक है, लोकली मैंने बताया था सबके कोरोसिव एक्शन है. फेटल डोज की हम बात पहले कर चुके हैं कि इसमें 10 to 15 ml की फेटल डोज है और इसमें भी फेटल पीरियड 12 से 24 आवर्स का है. अब कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी टाइप की पॉइजनिंग है. तो नाइट्रिक एसिड के लिए क्या टेस्ट होता है कि अगर किसी सोल्यूशन में नाइट्रिक एसिड है तो आप उसमें फेरस सल्फेट ऐड करो और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो. तो जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के जो जंक्शन होगा वहाँ पे एक ब्राउन रिंग बन जाएगी. ठीक है, ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स. तो ये टेस्ट आप नाइट्रिक एसिड के लिए लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू साइंस एंड सिम्टम्स. जैसा मैंने बताया था कि पेन इन थ्रोट, एपिगैस्ट्रियम, ठीक है, डिस्फेजिया, डिस्निया एंड डिस्फोनिया कॉमन है. स्ट्रॉन्गली एसिडिक वोमिटिस कॉमन है. डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो आता है कि वहाँ पे जो टीथ थे वो ब्रिटल थे और वाइट चॉकी थे. यहाँ पे येलोइश कोटिंग होगी टीथ पे और टीथ नॉन ब्रिटल होंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए. प्रेजेंस ऑफ टेनिस्मस इसमें भी है विद एब्डोमिनल स्टिफनेस. इरोजन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स इसमें भी हो रही है बट विद येलोइश डिस्कलरेशन. दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. और इस बारे में हम बात पहले ही कर चुके हैं. जो परफोरेशन ऑफ स्टमक है वो लेस कॉमन है HNO3 में भी और HCl में भी, वाइल परफोरेशन ऑफ स्टमक ज़्यादा होती है H2SO4 में. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू व्हाट कैन बी ऑफ डेथ. अगेन जैसा हमने बात करी थी कि पेरोटोनाइटिस, परफोरेशन ऑफ स्टमक, शॉक और लेरिंजियल स्पाज्म मोस्टली कॉमन है. और इसमें जो नया पॉइंट आता है वो आता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. ठीक है, अगर यहीं पे हम बात उसकी करें जब हमने, ठीक है, तो उसमें आता है ईसोफेजियल स्ट्रक्चर. उसमें था ईसोफेजियल, और यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. ठीक है, अब पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स या मेडिको लीगल एस्पेक्ट इसका क्या है. तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में आपको क्या मिलेगा, येलोइश डिस्कलरेशन. हम बात कर रहे हैं बहुत देर से कि येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन मिलेगी, कोरोजन मिलेगी. इसमें परफोरेशन ऑफ स्टमक इतनी नहीं है बट आपको स्टमक की वॉल फिर भी अल्सरेटेड और सॉफ्ट एंड फ्राइबल मिलेगी. एंड कंजेशन ऑफ लैरिंग्स एंड ट्रैकिया मिलेगा. ठीक है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट में ये एक्सीडेंटल हो सकता है या सुसाइडल हो सकता है. होमिसाइड इसमें रेयर है. इट इज़ नॉट यूज्ड एज एबॉर्टिफिशिएंट.
ओके, नेक्स्ट वी कम टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका कोई अलग से नाम नहीं है, अगेन ये कलरलेस है एंड अगेन ये पंजेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 एसिड जो पढ़े, उसमें से आपने देखा होगा कि सिर्फ एक था जो ओडोरलेस था, दैट वाज सल्फ्यूरिक एसिड, बाकी दोनों पंजेंट है, स्पेशली ये सार भी है। ठीक है, वैसे भी एसिड्स आर मोस्टली सार। ठीक है, एंड बर्निंग टेस्ट है एंड फ्यूमिंग है। लोकली कोरोसिव एक्शन है, फेटल डोज की हम बात कर चुके हैं 15 to 20 ml है। बाकी दोनों में फेटल पीरियड वो 12 to 24 आवर्स, इसमें वो बढ़ जाता है 18 to 36 आवर्स। ठीक है, टेस्ट इसका क्या होता है, जहां हमने पहले जो टेस्ट पढ़ा वो हमने पढ़ा कि फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, यहाँ पर हम ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। और अगर सिल्वर नाइट्रेट को HCl के साथ ऐड किया जाए तो सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे एक हैवी कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू साइंस एंड सिम्टम्स, अगेन जो पहले 2 पॉइंट्स है वो कॉमन है, डिस्निया, डिस्फोनिया, डिस्फेजिया विद पेन इन थ्रोट एंड एपिगैस्ट्रियम, स्ट्रॉन्गली एसिडिक वोमिटस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट हेयर इज कि जहां वहां पे एक में ब्रिटल टीथ थे, वाइट चॉकी टीथ थे H2SO4 में, वहीं HNO3 में येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ टीथ थे और नॉन ब्रिटल टीथ थे। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है टीथ में। ओके, टेनिसमस में भी प्रेजेंट हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, टेंडरनेस और स्टिफनेस होती है एब्डोमेन में, और परफोरेशन ऑफ स्टमक इज लेस कॉमन, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। ओके, कॉजेज ऑफ डेथ इसमें कम है, शॉक है, लेरिंजियल स्पाज्म है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है वो है पल्मोनरी एडिमा ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ वेपर्स। अगर इसके वेपर्स की इनहेलेशन होती है तो उससे पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। तो आपने क्या क्या कॉजेज ऑफ डेथ जो हमने डिफरेंशिएटिंग पढ़े, वो H2SO4 में था ईसोफेजियल स्ट्रक्चर, वहीं HNO3 में क्या था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वहीं HCl में क्या है, पल्मोनरी एडिमा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या मिलेगी, इसमें इतनी ज़्यादा कोरोजन ऑफ स्किन नहीं दिखती है। ठीक है, ब्राउनिश पार्चमेंटाइजेशन दिखेगी, मतलब एक पार्चमेंट सी, ब्राउन पार्चमेंट सी फॉर्म हो जाती है, तो वो आपको देखने को मिल सकती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेजेस, इसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो रहा है। एंड स्टमक विल कंटेन ब्राउनिश फ्लूइड, ये इंपॉर्टेंट है, स्टमक इज कंटेनिंग ब्राउनिश फ्लूइड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मोस्टली इसको सुसाइडल केसेस में यूज़ किया जाता है, एक्सीडेंटल इसमें कम है क्योंकि बाकियों में एक्सीडेंटल पॉइजनिंग थी। ठीक है, और होमिसाइड तो सब में ही रेयर है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू लास्ट टॉपिक, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दिस पॉइजनिंग्स, जो कि सब में सेम है। इसके 10 पॉइंट है, कोशिश करना है जितने ज़्यादा आपको याद हो सके और इन ऑर्डर याद हो सके वो याद करना है। सबसे पहली बात तो क्या है कि अवॉइड कीजिए गैस्ट्रिक लवाज और एमेटिक्स देना। अभी हमने बात करी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, जो वॉमिटस है वो एसिडिक है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हम वॉमिटिंग इंड्यूस करें, सो अवॉइड गैस्ट्रिक लवाज और एमेटिक्स। ठीक है, जो एसिड है उसको इमीडिएटली डाइल्यूट किया जाना चाहिए और न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए इन सिटू बाय गिविंग 1/4 ऑफ वाटर या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या लाइम वाटर। तो नॉर्मली बस बात क्या है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। गिव अ डिमल्केंट, व्हाट इज अ डिमल्केंट, डिमल्केंट होते हैं कि जो जैसे अल्सरेशन होती है उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देते हैं। ठीक है, तो ऑलिव ऑयल हो सकती है, अल्सरेशन या म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं ताकि उनकी कोरोजन ना हो। ठीक है, लाइक ऑलिव ऑयल, मिल्क या एग वाइट्स। ठीक है, और आप क्या दे सकते हैं, आप प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं 60 mg पर डे। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है, मेजरली टू प्रिवेंट इसोफेजियल स्ट्रक्चर एंड टू प्रिवेंट शॉक। ठीक है, एंड अगर तो सर्कुलेटरी शॉक हो रहा है तो उसको हम करेक्ट करें बाय गिविंग फ्लूइड्स या रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन। ठीक है, अगर देयर इज एडिमा ऑफ ग्लॉटिस, ग्लॉटिस का एडिमा हो चुका है तो ट्रेकियोस्टमी करनी चाहिए। ठीक है, एंड गिव नथिंग बाय माउथ। ठीक है, बिकॉज इतना तो परफोरेशन हो चुका है, इसोफेजियल स्ट्रक्चर हो सकता है, डू नॉट गिव एनीथिंग बाय माउथ। ठीक है, जो स्किन के ऊपर बर्न्स हैं उनको वॉश करना चाहिए विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड अ पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर याद हो तो इसी चीज़ को हमने विट्रोलेज की ट्रीटमेंट में भी डिस्कस किया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड या कार्बोनेट को देना चाहिए। एंड अगला पॉइंट भी अगेन सेम है विट्रोलेज में से ही, कि आई बर्न्स को इरिगेट करना चाहिए विद वाटर और सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन फॉर 10 to 15 मिनट्स। एंड लास्टली जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो देना चाहिए। Lastly, these are the references from which this video is made. So अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस ऑन द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मी, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम और इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू गाइस।